So here we are giving two different inputs. Let's say this I will terminology VN1 and I will give a name as VN2. Let us say this is its source resistance RN1 and RN2. So what do we know? We know that our VO should be A times VID. Is it clear? I think it is already known to you. This is a differential gain A. We call it sometimes A as a large signal gain or AD as a differential gain. So what do we need to know to get output voltage? We need to know what is the VID. Now VID is what? If the voltage at non-inverting terminal is V1 and this is at V2. So we say this is a VID. So here VID is a V1 minus V2. Now what is V1? V1 is a voltage at this point. What is the voltage? VN1. So we can say it is nothing but VN1 minus VN2. So in total what we are getting? VO is equal to A VN1 minus VN2. So as the output voltage is proportional to the differential input VN1 minus VN2, we can say this is acting as a differential amplifier. So the output is proportional to the difference of these two signals what we are giving. So this is one of the application. Then the second application can be inverting amplifier. Okay, inverting amplifier. Mind it is in the open loop configuration. Actually, we are more interested in the closed loop. But before starting the closed loop, we need to see what are different applications in the you can say open loop configuration. Okay. Earlier, we have given two inputs, two inverting as well as non-inverting. What if I give the input only to the single terminal, means keeping the other as a grounded one. Let's say I am keeping this as a ground. Now I will mention ground like this one. In this op-amp, we normally give ground like this one, or you can write like this also. Okay. Let's say if I am giving certain voltage here as Vin with its source resistance, whatever it may be, let's say some Rin. When this signal is shown, it can be anything. It can be AC, it can be DC. Okay. Let's say this is Rin and this is Vin. Now what will be the output voltage? Can anybody tell me? Start by your basics. How do we write VO? VO is equal to A VID. Okay. Yes. Do not forget. It will be always useful. And this A we write V1 minus V2. Where V1 is a non-inverting input, V2 is a inverting input. Now here what we see, the V1 voltage is 0, grounded as it is grounded, and V2 voltage is Vin. So Vin. So ultimately what I am getting, output is equal to minus A times Vin. As the output voltage is proportional to the negative of input, it is said to be an inverting amplifier. We can say this is inverting amplifier, whereas it was a differential. Okay. So let us say here, if I give the, this is my input. So what sort of output I am getting? I am getting the output much more amplified, but in the inverting way. If this is my Vin, this is my VO. What would have been in the differential case? In the differential case, let's say this is a Vin1, okay, and let's say this is, let's say, some Vin2, and the difference of these two, let's say whatever is there, depending on if the difference is positive, if the difference VID is positive, I will get a amplified like this one. If VID अगर negative होता, मतलब V1 से V2 बड़ा होता, तो माइनस आता कि नहीं? तो ये हमारा निगेटिव हो जाता था. अगर ये निगेटिव होता तो, और ये पॉजिटिव है तो, ऐसा करते हैं ना.
मैं आपको एक प्रॉब्लम ही दे रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए, आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। Vin1 दिया हुआ है 5 माइक्रोवोल्ट और V2 दिया हुआ है, Vin2 दिया हुआ है -7 माइक्रोवोल्ट। दोनों डीसी है, अभी एसी नहीं ले रहे, डीसी है, ठीक है। एक केस ये लेते डीसी का और दूसरा केस एसी का लेते। ऑप एम्प 741 लिया हुआ है, दिया है ऑलरेडी, इट इज गिवन विथ, उसके स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है हमारे पास कि ए इज 2 × 10⁵, गेन इज 10⁵। इसका सपोज इनपुट इंपीडेंस भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अगर इसका यूज नहीं है तो उसके लिए वरी मत करना, लेकिन कभी कभी ये दिया रहता है। आउटपुट रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और ये भी बताया कि प्लस वीसीसी यूज किया है +15, माइनस वीईई यूज किया है -15 वोल्ट। आई होप इट इज विजिबल टू यू। एंड बताया, एंड इट इज बताया कि आउटपुट वोल्टेज स्विंग ये सब गिवन है, ±14 वोल्ट, मतलब ये ±14 तक ही जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। इट इज वेरी वेल नोन, Vin1 इज गिवन 5 माइक्रोवोल्ट डीसी, Vin2 इज -7। अगर इसको ग्राफिकली दिखाऊंगा तो कैसे दिखेगा, अगर ये 0 है तो 5 माइक्रोवोल्ट, किसी को भी ये 5 दे दिया, डीसी होने की वजह से मैं स्ट्रेट बना रहा हूं, बराबर है। ये Vin1, ये 5 माइक्रोवोल्ट, फिर Vin2 बना रहा हूं, ये 0 है और ये है -7, तो ये इसका -7 माइक्रोवोल्ट, ये हो गया मेरा Vin2। अब आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। What should I write? VO equals to, हमेशा की तरह AVID. Exactly. Yes. This you should not forget. And now write it in detail. V1 minus V2. Yes. Now write what is values. Okay. We will write the values. So 2 × 10⁵. What is V1? 5 माइक्रोवोल्ट। 5 माइक्रोवोल्ट, और ये माइनस 2 बार हो गया ना, निगेटिव। यस, 7 माइक्रोवोल्ट। तो 5 + 7 12। ठीक है, 12 × माइक्रो यानी कितना हो जाएगा, 10⁻⁶, ठीक है ना। अब 10⁵ और 10⁻⁶, तो कितना बचा, -1। गुड, यानी कितना हो गया इसका, बताओ लास्ट। 24 × 10⁻⁻1, कौन बताएगा, 2.4। वेरी गुड, 10⁻⁻4 यानी 1/10, ठीक है, 2.4 वोल्ट। ये कभी भी जो आउटपुट वोल्टेज आएगा ना, इसको ऑब्जर्व करना कि ये ±14 के अंदर है क्या, नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा तो डायरेक्ट ± ये इस पर सैचुरेट हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो +14 वी सेट पे हो जाएगा, निगेटिव होगा तो -वी सेट पे होगा, ठीक है। तो हम ये आउटपुट, ये हमारा आ गया, ये आउटपुट 2.4 वोल्ट आया, सॉरी, ये आउटपुट। आई होप इट इज अंडरस्टूड। एक और सेकंड प्रॉब्लम से समझते हैं डिफरेंशियल। अब सेकंड जो है प्रॉब्लम, उसमें गिवन है स्पेसिफिकेशन एज अबव, जो दिया है वही, और यहाँ पे दिया है Vin1 10 मिलीवोल्ट आरएमएस दिया, इसका मतलब समझ जाएंगे कि आप एसी है, 20 मिलीवोल्ट आरएमएस। तो Vin1 इज 10 मिलीवोल्ट आरएमएस, Vin2 इज 20 मिलीवोल्ट आरएमएस। अब इसको अगर ग्राफिकली दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ये लो, ये मान के चलो, ये छोटा दिखा रहा हूं जानबूझ के, ये है Vin1, कितना है Vin1, 10 मिलीवोल्ट आरएमएस, 10 मिलीवोल्ट, हाँ, और Vin2 क्या रहेगा, इसके डबल रहेगा, तो थोड़ा बड़ा दिखा दिया, दोनों सेम फेज में दिखाया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया नहीं है, बट सेम फ्रीक्वेंसी का होगा ये बताना है। अब ये Vin2 है, ये Vin2 है और ये Vin1, कैसे फिर से आउटपुट कैसे निकालते हैं हम लोग, हाँ, A is 2 × 10⁵, VID is V1 - V2, V1 is 10 millivolt minus 20 millivolt, so it will give you the value as -10 minus। तो बताओ आप कितना हो गया, यस सर, कितना आ रहा है, -2000। हाँ, so is it possible to get 2000 volt at the output? सैचुरेशन हो जाएगा। सैचुरेशन किस तरीके से होगा,
प्लस माइनस होगा। क्यों होगा प्लस माइनस? क्योंकि ये दोनों साइकिल में जा रहा है और आउटपुट क्या आ रहा है हमारा? आउटपुट क्या है? माइनस ऑफ इनपुट है। ये माइनस को ध्यान रखो। तो इसका मतलब ये कि जब पॉजिटिव साइकिल रहेगी तो ये माइनस निगेटिव पे आएगा, ये निगेटिव पे आएगा। किस वैल्यू पे? माइनस वी सेट। ये टू स्केल, एकदम स्केल पे नहीं है, ये माइनस वी सेट, जिसकी वैल्यू रफली -14 वोल्ट। और जब पॉजिटिव साइकिल है, निगेटिव साइकिल है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस वी सेट। ये क्यों प्लस हो रहा है ये ध्यान में आया ना आपके? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस। ये जो है Vin1 से Vin2 बड़ा है, तो VID जो है वो निगेटिव है, इसलिए प्लस साइकिल के वक्त माइनस आएगा, निगेटिव साइकिल के वक्त प्लस आएगा। इस तरीके से आउटपुट आएगा। आई होप इट इज अंडरस्टूड। इसीलिए इवन इफ फॉर अ मिलीवोल्ट इट इज नॉट एबल टू एम्पलीफाई, इवन इफ फॉर मिलीवोल्ट इट इज नॉट एबल टू एम्पलीफाई, क्योंकि इसका गेन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो लेट अस गो टू थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है? अभी अपन ने कौन सा देखे थे? पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसके बाद इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब नॉन इन्वर्टिंग। इनपुट कहाँ रहेगा सर? पॉजिटिव में। हाँ, वही सही लॉजिक है ना, वही तो है अभी जो बताएं। पॉजिटिव में ही होगा सर इनपुट। हाँ, बस यहाँ एक इनपुट दे दो, नेगेटिव ग्राउंड होगा आई थिंक। एग्जैक्टली वही है। ये लॉजिक लगाना है, और क्या लगाओगे? इससे क्या होगा? इसका VID जो है वो सिर्फ V1 रहेगा। तो अगर V1 नाम दे दिया, इसको V2 नाम दे दिया, तो VO इक्वल्स टू AVID इक्वल टू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 2A। V1 आएगा और V2 0 हो जाएगा, इसलिए ये मिल गया V in। तो VO इक्वल्स टू A Vin, as the output voltage is directly proportional to input voltage with no inversion of sign, whereas it was here VO was proportional to minus of Vin, so this was inverting। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था, और ये हमारा जो रहेगा नॉन इन्वर्टिंग। ओके, आपको सो आई होप दिस थ्री टाइप्स यू नो: ओपन लूप, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर and non-inverting amplifier. Now what is the problem with the open loop amplifier? As the gain is very high, even for a small input, the outputs get saturated, and that's why we cannot use it for the large application, we cannot use it for various applications. So this is the problem with this, we can say. Okay, so let us see what we can say. The drawbacks, I can say, as A is very high, मतलब gain is very high, even for small inputs, outputs get saturated. So we are not able to amplify the signal. Plus, we do not have control over the value of A, यानी ये जो A है, we cannot adjust it, it is fixed. Or although we say it is a constant or fixed, it is not constant. It is not constant in a sense, it varies with supply, मतलब पावर सप्लाई में थोड़ा भी चेंज आ गया तो it varies, and temperature. तो थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज हो गया तो वही सेम वैल्यू नहीं मिलती है। इट मीन्स वी डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर A, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हमको गेन, सपोज मेरे को कोई 1 वोल्ट का 10 वोल्ट बनाना है, मतलब 10 ही गेन रखना है, सो दैट आई डोंट हैव इट। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट था 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 1 मेगाहर्ट्ज में अगर A इज लार्ज 2 to power 10 to power 5, तो उसका बैंडविड्थ तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। एक्चुअली 741C के लिए इसका बैंडविड्थ होता है 5 हर्ट्ज ओनली। 5 हर्ट्ज इज नथिंग, जस्ट लाइक अ डीसी। 10 हर्ट्ज की भी हम फ्रीक्वेंसी या 100 हर्ट्ज की भी फ्रीक्वेंसी हम लोग एम्पलीफाई नहीं कर सकते। So it is as good as it is only useful for a DC application, but not any AC application. So we can say you can say open loop bandwidth very small, 5 hertz for 741C, just 5 hertz,
नथिंग। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग एम्पलीफाई तो लिटरली ओनली यूजफुल फॉर डीसी बट नो एसी। ठीक है, so these are the reasons we can say, these are the drawbacks we can say which are associated with open loop, and that is the reason we go for closed loop. Closed loop means what? Can anybody tell me? Closed loop means what? Feedback applied. Yes, that using feedback. If we are using a feedback, it means it will be closed loop. And just by adding a feedback, miracle happens. See, if I am teaching you one way and I am not taking a feedback from you, I'll not able to understand whether you are digesting or not. Suppose you are driving a motorcycle and you are not looking to the odometer or the speedometer and just you are accelerating. So it may cause an accident. So what you need to see? You need to see the speedometer or the odometer, what we used to say. So if you are increasing the acceleration, you are accelerating it, it is going from 10 km/h to 20 to 30 to 40 to 50, let us say, and then you may realize that 50 is sufficient for me, and if it is going above 50, you will decelerate it or you will decrease that you can say accelerator, isn't it? So that is what is a control or regulation that happens with the closed loop system. I hope it is understood. Yes. So what we do, we use a feedback. Now, as you have studied, there are two types of feedback. क्या क्या कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव। यस यस यस। एक्चुअली इन फीडबैक, अगर सिंपल में बोला जाए कि फीडबैक से क्या फायदा होता है, तो हम इतने सिंपल में लिखूंगा कि ऑल द रिक्विसाइट, मतलब जो हमको चाहिए है, हमारे डिजायरेबल है, रिक्विसाइट कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्प्रूव्ड। ये सिंपल में एक लाइन में हो गया। एक्चुअल में डिटेल में हम लोग बाद में बोलते हैं कि जो भी रिक्वायर्ड होता है, रिक्विसाइट होता है, वो सब अब क्या क्या वो देखेंगे हम इस तरीके से। तो सबसे पहली बात तो वी गेट कंट्रोल ओवर गेन। अभी तक कि हमारे पास गेन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, तो वी गेट कंट्रोल ओवर गेन। इट मींस वी आर एबल टू एडजस्ट द गेन, रादर वी कैन सेट और वी कैन डिफाइन। सपोज आपको 10.5 चाहिए, 10.8 चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए, whatever the gain that we can adjust. ठीक है, so we can control, we get control over gain as compared to or over the open loop, you can say. Particularly I am talking about the negative feedback. अब पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक क्या होता है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं ज्यादा इलेबरेट नहीं करूंगा, लेकिन समय के साथ में बाद में बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। इट स्टेबलाइजेज द गेन, it stabilizes the gain. What do you mean by stability? कौन बताएगा? सर क्यू पॉइंट। हाँ सर क्यू पॉइंट स्टेबल होता है। क्यू पॉइंट स्टेबल होता है, ऐसे बोल रहे। ट्रांजिस्टर में आपके हिसाब से आपने ट्रांजिस्टर से कोरिलेट किए मेनी टाइम। हाँ बोलिए, बहुत सही बात है। आप जहां से आ रहे हैं वही बैकग्राउंड लेंगे, मैं ये नहीं बोलता। बट स्टेबिलिटी ये टर्म कई बार बोलो साथ में आउटपुट चेंज। फिर से बोलो। स्टेबिलिटी का मीनिंग सेम है जो लिटरल मीनिंग है, स्टेबल होता है, पर स्टेबिलिटी क्या? अब मैं आपको हमेशा कम होगा। क्या होगा सर? जैसा इनपुट दे रहे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, मतलब शिफ्ट नहीं होगा। अभी उसने जो बोला ना वो बहुत सही है, वेरिएशन यानी कम होगा। मतलब जो गेन में चेंज आ रहा था, कैसे चेंज आ रहा था? सप्लाई वोल्टेज से और टेम्परेचर से। वो जो वेरिएशन हो रहा था, वो जो उसके साथ में चेंज हो रहा था, वो चेंज कम होगा, मतलब मोर स्टेबल होगा। अभी भी वो ये दावा नहीं करता कि पूरी तरह स्टेबल या कांस्टेंट होगा, लेकिन अब जो वेरिएशन है वो निग्लिजिबल होगा। समझ में आ रहे? तो वो हमारा स्टेबिलिटी है। प्लस और एक बता रहा हूं, ये स्टेबिलिटी वर्ड कई बार एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी होता है। हम जब ऑसिलेटर टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, हम जब ऑसिलेटर पढ़ेंगे और हम उसमें बोलेंगे कि इट इज मोर स्टेबल और इट इज द मोस्ट स्टेबल सर्किट, तो वहां स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या रहेगा?
ऑसिलेटर में हमको क्या चाहिए होता है? ऑसिलेशन चाहिए होता है। मतलब क्या चाहिए होता है? फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। अब वहां स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि द फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट with the changes in all parameters. Getting my point? In amplifier, the gain is a useful parameter. So here we are concerned with the gain, and in the applications of oscillator, we are concerned with the frequency or oscillation. So in the oscillator, stability means frequency stability. I hope it is very much clear to you. Yes, sir. Next point is increases the bandwidth or improves बोल दिए तो क्या होता है, जरा अपनी लैंग्वेज में समझ में नहीं आता। इंप्रूव बोले तो क्यों, कि क्या हो गया अपने को फर्क ही नहीं पता चलता, पता ही नहीं चलता फिर कि ये मैंने बोल दिया अगर आपको इंप्रूव हो गया तो एकदम से यानी उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं होता कि क्या डिजायरेबल है। इसलिए बेटर है कि हमको जो डिजायरेबल है वो लिखे। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैंने बोल दिया कि इसके इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस इंप्रूव होते। अब बताओ क्या होगा? मैंने बोल दिया आपको कि विथ क्लोज लूप इसका इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है। तो आपके क्या समझ में आया मुझे बता दो। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आना चाहिए कि डिजायरेबल क्या है। बताओ जल्दी। फिर मैंने बोल दिया इसका इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है इनपुट रेजिस्टेंस। यस सर, मे बी। और आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस डिजायरेबल क्या है? ज्यादा होना चाहिए, तो वो इंप्रूव होता है मतलब आ रहा है, बढ़ता है। आउटपुट रेजिस्टेंस डिजायरेबल है, लो होना, तो ये कम होता है, बहुत डिक्रीज हो जाता है। गॉट माय पॉइंट नाउ? ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको लगता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इंक्रीजेस द इनपुट रेजिस्टेंस एंड इट डिक्रीजेस द आउटपुट रेजिस्टेंस, अगर लगा तो। या फिर इंप्रूव लिखो लेकिन समझ के लिखो। और आपने जब एग्जाम में इसके लिखा था मेरिट्स ऑफ क्लोज लूप वगैरह, तो ये भी बहुत बार लिखा होगा, डिक्रीजेस द हार्मोनिक और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। क्योंकि मैं देखा जनरली कई बार मगअप कर लेते हैं वो ट्रांजिस्टराइज जब पूछा जाता है ना, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, जो डिस्टॉर्शन होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। ये भी उसका फायदा है, बहुत स्टेबल हो जाता है। एक फीडबैक से इतना फर्क पड़ जाता है कि आप ऐसा समझ लो कि जो रडार के एप्लीकेशन है इट डिपेंड्स ऑन फीडबैक ओनली। आप सोच के देखो ना, ये जो ये रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं ये फीडबैक का एप्लीकेशन है। व्हाट इट सीज अ टारगेट इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी, देन इट ट्रैक्स इट, देन इट व्हाट इट प्रेडिक्ट कि आफ्टर सर्टेन टाइम वेयर इट विल मूव, कि इतने अंतर में ये कहां पहुंचेगा। मेरा रॉकेट अगर मैं यहां से छोड़ता हूं तो उतने दूर पहुंचने को कितना टाइम लगता है, तो जितना टाइम लगता है उसके हिसाब से उसको उतने डिस्टेंस शिफ्टेड हमको भेजना पड़ता है, ताकि हम राइट में भेज रहे तब वो वहां पहले लेफ्ट में है और वो वहीं तक पहुंचे और दोनों एक जगह मीट हो, सो दैट रॉकेट उस टारगेट को डिस्टॉर्ट कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। होप आई एम एबल टू convince you the applications of feedback. Similarly, reduction in the effect of input offset voltage. Input offset voltage हमारा problematic था, ये भी कम हो जाता है। So I will write reduction in the effect of input offset voltage at the op amp. Then इसका और एक बहुत अच्छा advantage है, reduction in the effect of variation in temperature, effect एंड सप्लाई वोल्टेज, एंड जिसके कारण चेंज हो रहा था ना तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अब सप्लाई वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएट भी हो गया तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। एंड सप्लाई वोल्टेज ऑन द आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर। हमने देखा इसका ड्रॉबैक क्या था कि एज द गेन इज वेरी वेरी हाई वी आर नॉट एबल टू एम्पलीफाई इवन अ वेरी वीक सिग्नल ऑफ मिलीवोल्ट, इट गॉट सैचुरेटेड। तो साइन का पूरा फेथफुल रिप्रोडक्शन न होते हुए एकदम से स्क्वायर मिल जाता है, डीसी दिया तो सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो द गेन इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज विद द सप्लाई एंड टेम्परेचर, एंड ऑल्सो वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर गेन, वी आर नॉट एबल टू चेंज, एंड द बैंडविड्थ इज वेरी लो। So with the closed loop we are having the control over gain. In the negative feedback it stabilizes the gain, increases the bandwidth,
improves इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, मतलब RI बहुत बढ़ जाता है, RO बहुत छोटा हो जाता है। डिक्रीजेस द हार्मोनिक एंड नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, इनपुट ऑफसेट कम हो जाता है, और इफेक्ट ऑफ वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर के साथ या सप्लाई वोल्टेज के साथ, वो बहुत कम हो जाता है। अब हम लोग वी विल स्टार्ट दी क्लोज लूप सिस्टम। ओके, तो शुड वी गो फॉर क्लोज लूप? अब यहां से हम क्लोज लूप के एप्लीकेशन देखेंगे। अब ये बताओ मुझे कि निगेटिव फीडबैक के एप्लीकेशन आपको मालूम है, इट इज यूज इन एम्पलीफायर, बराबर है। पॉजिटिव फीडबैक के एप्लीकेशन बताओ क्या होता है। अच्छा, ये सब इतने सारे इंप्रूवमेंट बताए ये सब में, गेन में, ये नहीं सब निगेटिव फीडबैक के साथ इतने सारे बहुत अच्छे अच्छे सभी चीजें अच्छी है। कोई ड्रॉबैक तो होगा, कुछ कोई ड्रॉबैक है क्या? इसका एक ही ड्रॉबैक है जो जिसको मैं एक्चुअल में ड्रॉबैक नहीं मानता, गेन रिड्यूस होता है, गेन रिड्यूस होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपने हाँ, इसका गेन रिड्यूस होता है, ये चीज आपने ट्रांजिस्टर का पढ़ते वक्त बोला है, आपने वो स्टडी किया है, ये मुझे मालूम है, ठीक है ना। ये जो ये ए है ना, ये ए रिड्यूस हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। तो छोटा होना वैसे भी वहां अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा गेन की हमको जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ एप्लीकेशन में अगर चाहिए है तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत सारे टाइप पढ़े होंगे फीडबैक, इसके फीडबैक के कौन कौन से टाइप्स ऑफ फीडबैक, कौन कौन से? वोल्टेज सीरीज फीडबैक, यस सर, वोल्टेज शंट फीडबैक। हाँ, ये तो पढ़ा ही होगा, वही मैं पूछना चाह रहा था। वोल्टेज शंट फीडबैक और बोलो सीरीज फीडबैक। अब एक बार वोल्टेज चेंज करना, एक बार सीरीज शंट करना। आप करंट ले लो, करंट सीरीज, और चौथा क्या हो जाएगा? करंट शंट। करंट शंट फीडबैक। बस 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 बस। अब इसमें ना नॉर्मली हम लोग जो ऑप एम्प के साथ यूज करने वाले या पढ़ने वाले, ये पहले दो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। और ये इसमें से एक थोड़ा बहुत यूज होता है जिसका कि निग्लिजिबल है, मतलब आपके लिए तो नहीं है, ऐसा मान के चलो। तो आपको क्या पढ़ना है, ये कितना क्लियर हो गया, कितना क्या पढ़ना है आपको? दो ही टाइप पढ़ना है। कौन से टाइप? वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट। ओके, अब मैं वो ब्लॉक डायग्राम बनाता नहीं आप लोगों को, या ठीक है मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ बनाने की बजाय। यस सर। Yes, sir. ये पहले वाले में देखो, हमने इस आउटपुट के अक्रॉस लगाया है, तो दिस वी आर टेकिंग एज अ वोल्टेज, और ये फीडबैक दिया है इस इनपुट के सीरीज में, ठीक है। तो ये हो गया वोल्टेज सीरीज फीडबैक। अब नीचे आ जाओ, ये अक्रॉस लिया है यानी कि वोल्टेज, और ये जो फीडबैक है ये हमने इधर लगा दिया अक्रॉस में, इसके मतलब शंट कर दिया, तो वहां हो गया वोल्टेज शंट फीडबैक। सेम वे यहां पे ये अक्रॉस न लेते हुए उसी के सीरीज में हमने एक डाल दिया, उसी के सीरीज में डाल दिया। तो ये अब सीरीज में क्या फ्लो होता है? करंट। तो आउटपुट से क्या ले रहे हैं हम? करंट। और ये फीड कैसे कर रहे हैं? तो इसके सीरीज में, तो ये हो गया करंट सीरीज, और ये इसके सीरीज में है तो ये करंट है, और इसको दे रहे हैं अक्रॉस में तो ये शंटेड हो गया, तो करंट शंट फीडबैक। आई होप इट इज अंडरस्टूड। इसको मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना, समझ में आए? ओके सर, यस सर। वेरी वेल। बिफोर आई गो टू दिस वन, आपको क्लोज लूप में गेन क्या होता है आपको मालूम है क्या? किसी को मालूम है? क्लोज लूप गेन आपने लिख चुके हैं लेकिन आपको मालूम नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। कई बार ये ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, ये आप कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जब कंट्रोल सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो इस तरीके से भी दिखाया जाता है। ये ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ओपन लूप गेन या फॉरवर्ड गेन। इस एच को बोलते हैं हम फीडबैक गेन या रिवर्स गेन। इस तरीके से ये इनपुट है RS दिखाया है, और ये CS आउटपुट है। अब अपनी लैंग्वेज में अपन बनाते हैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करने के बजाय मैं अपनी लैंग्वेज में बना रहा हूँ, थोड़ा सा एलेबरेट कर रहा हूँ
थोड़ा टाइम, मैं अपने तरीके से जानबूझ के इसको जनरलाइज लेने की इच्छा रख रहा हूं मैं। सपोज इसको समिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। ये एक क्रॉस इस तरीके से दिखाया है कि ये इनपुट दिया मैंने, ये मेरा इनपुट है, ये कोई इनपुट है, और ये मेरा ओपन लूप गेन है। अभी के लैंग्वेज में अपना ओपन लूप गेन कितना था, ए, ये इस तरीके से जा रहा है। अगर मैं यहां ये दे दिया तो आउटपुट मिलेगा मुझे यहाँ पे, ये आउटपुट मिलेगा ना इस तरीके से। हेलो, यस सर, हाँ यस सर। और ए के अगर ऑप एम्प के देखा जाए तो इनपुट क्या रहता था हमारा, वीआईडी, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ना ये, तो हमारा वीआईडी और आउटपुट वीओ। अब ये ओपन लूप था यहां तक के। अब मैं क्लोज लूप करने के लिए क्या किया, इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट निकाला। मतलब सपोज एक रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क है, यानी इस तरीके से सपोज ये आउटपुट वीओ है और यहाँ पे मैं ऐसे दो रजिस्टर इस तरीके से ग्राउंड है, ये सपोज कोई वैल्यू R1 है और ये R2 है। अगर यहाँ से वोल्टेज लूंगा तो इसका कुछ फ्रैक्शन आएगा ना, ये सपोज फीडबैक लिया मैंने वोल्टेज, तो इस आउटपुट का ये आएगा ना, ये वाला, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वीओ। तो इसका मतलब ये वीओ का कुछ फ्रैक्शन हुआ ना, R2 अपॉन ये 2 है, इसका मतलब वीओ का कुछ पार्ट होगा ना, क्योंकि R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो नेचुरली ये वाली ये जो वैल्यू देगा ये फ्रैक्शन देगा 0.8 0.7, तो वीओ का कुछ पार्ट हम यहाँ फीडबैक कर रहे हैं। मान लो कि फीडबैक का गेन है बी या बीटा, कई बार टर्म बीटा यूज करते, कई बार बी यूज करते, और ये मैंने इसको दे दिया वापस इनपुट को। अब ये तुम इन फेज देते हो कि आउट फेज देते हो, इसके ऊपर इसका फीडबैक का टाइप डिपेंड करता है। सपोज मैं वीन को इन फेज दिया, लेकिन ये जो आउटपुट, ये जो फीडबैक है ये मैंने आउट ऑफ फेज दिया, मतलब निगेटिव फीडबैक यूज किया, तो ये हो गया निगेटिव फीडबैक, ये हो गया निगेटिव फीडबैक। अगर ये दोनों सेम फेज में दे दिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। आई होप इट इज अंडरस्टूड। हेलो, यस सर। हाँ, अब देखो क्लोज लूप गेन कैसे आता है, मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, जबकि ये आपके सिलेबस में नहीं है या मेरे को बताना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब हमको ये बताओ A इक्वल्स टू क्या होता है, VO बाई VID, या तो VO इक्वल्स टू AVID बोलो या A इक्वल्स टू VO बाई VID, ठीक है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ VO इक्वल्स टू VID, ये तो मालूम है अपने को। यस सर। और VO इक्वल्स टू AVID लिखा तो A V1 माइनस V2 रहता है ना। अब इसमें V1 क्या है, यहाँ V1 मैंने दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज Vin, और V2 क्या है, ये फीडबैक वोल्टेज। और ये VF कितना रहेगा, हम गेन कैसे निकालते हैं, VO अपॉन VID। यहाँ वैसे B इक्वल्स टू क्या होगा, VF अपॉन इधर इनपुट क्या है इसके लिए VO, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VF अपॉन VO, या VF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स VO, मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो R2 अपॉन R1 प्लस R2 था ना, ये यानी बीटा। समझ में आया। यहाँ पे मैं VF ही लिखता हूँ डायरेक्ट और फिर बाद में वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। A विन माइनस यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, B VO, ठीक है। ये समझ में आया कि देखो ये VF कैसे आया, VF इज, ये VF यहाँ आउटपुट है, इसका इनपुट क्या है VO, तो VF अपॉन VO इक्वल टू B, जैसा ये VO अपॉन VID इज इक्वल टू A, आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू A, यहाँ का आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू B, यहाँ का आउटपुट है फीडबैक वोल्टेज VF, यहाँ का वोल्टेज है VO, तो VF अपॉन VO इक्वल्स टू B, तो VF इक्वल्स टू BVO, जो यहाँ वैल्यू रख दिया मैंने। अब आपके समझ में आया यहाँ तक के समझ में आया क्या? यस सर। अब ये VO टर्म एक तरफ कर ले रहा हूं मैं, VO एक तरफ कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये VO एक है और ये BVO इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, A के साथ प्रोडक्ट होके हो जाएगा। ये लिख सकता हूं मैं AB VO, मैंने कॉमन निकाल दिया। या चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके समझने के हिसाब से, A विन माइनस AB VO, ये और ये टर्म हमने पास में ले लिया, तो ये VO इक्वल टू 1 प्लस B सॉरी AB
इक्वल्स टू ए वी इन। यहां तक के समझ में आया क्या? यस सर। अब ये वीओ बाई वी इन इक्वल्स टू कितना आ गया ये मुझे बता दो। ये जो है आउटपुट वोल्टेज है वीओ यानी, हेलो, यस सर। और वीन यानी इनपुट वोल्टेज है, जो सिग्नल आपने कनेक्ट किया है वो है। तो इसको बोलते हैं गेन विथ फीडबैक। ये है ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन बोलेंगे या गेन विथ फीडबैक एएफ। और वो कितना आता है? देखो विदाउट फीडबैक गेन कितना था? ए, और विथ फीडबैक गेन कितना आ रहा है? ए अपॉन 1 प्लस ए बी। अब ए इज वेरी वेरी हाई, पक्का है, बराबर है ना? हेलो, आपको 741 का ए बहुत ज्यादा है मालूम है ना? यस सर। तो ए बीटा भी बहुत ज्यादा ही Yes, sir. रहेगा। ए बीटा फ्रैक्शन 0.5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो भी ज्यादा ही रहेगा, और उसमें 1 ऐड भी किया और ये वाली क्वांटिटी को इससे डिवाइड किया, तो आपका क्लोज लूप गेन कम हो गया कि नहीं, डिक्रीज हो गया कि नहीं? देखो आप अप्रोक्सीमेट करता हूं मैं, ठीक है? ये अगर ए है, ये 1 प्लस ए बी इक्वल टू मैं ए बी कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? क्योंकि 1 इज निग्लिजिबल, ये 2 to 10.5 के, तो आ गया 1 अपॉन बीटा, है ना? आ गया 1 अपॉन बीटा अप्रोक्सीमेटली। हेलो, यस और बीटा क्या है, बी क्या है? अब भी देखे थे हमने R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब हमारे पास पूरी तरीके से कंट्रोल आ गया एएफ पे, गेन पे, कि हम जस्ट विद दी रजिस्टर वैल्यू वी कैन चेंज द गेन। गॉट माय पॉइंट? और मैंने आपको बोला था क्लोज लूप में गेन रिड्यूस होता है, तो वो भी आपको पता चल गया कैसे रिड्यूस हो रहा है। ओपन लूप में गेन ये है, लेकिन क्लोज लूप में इससे डिवाइड होता है एक फैक्टर से। कौन से फैक्टर से? 1 प्लस ए बी। ये जो 1 प्लस ए बी फैक्टर है ना, ये हर बार आएगा, आपको एक बार याद रखना, ये हर बार आएगा। मतलब कैसा आएगा, मैं आपको जानबूझ के बताता हूं कि अभी तक अपन ने बोले थे आर आई इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये विदाउट फीडबैक था। अगर विथ फीडबैक है तो मैं आर आई एफ लिखता हूं। तो ये मैंने बोला था कि बढ़ता है, बढ़ता है ना, कितने से बढ़ता है? पूरी चीज में यही क्वांटिटी आएंगी, 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी टाइम्स हो जाएगा। आर ओ एफ मतलब क्लोज लूप फीडबैक, सॉरी आउटपुट रेजिस्टेंस, तो ये कम होता है तो आर ओ अपॉन 1 प्लस ए बी। ए एफ कम होता है तो ए अपॉन 1 प्लस ए बी। बैंडविड्थ बढ़ता है तो ये कितना होगा? जो भी उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ में 1 प्लस ए बी। तो ये जो 1 प्लस ए बी टर्म बार बार आएगा। और ये कैसे डिराइव किया हमने? यहां पे डिराइव किया, आया ना ध्यान में? अब मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक होता तो क्या आता था यहां पे? अंदाज लगा सकते हो क्या आएगा? increase in voltage gain. सर गेन इंक्रीज होगा। हाँ, फॉर वो तो आपको मालूम है, लेकिन अगर ये डिराइव करता मैं एएफ, तो ये आना चाहिए था ए अपॉन, जहां प्लस था ना उसकी जगह 1 माइनस। और इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जब हम ऑसिलेटर पढ़ेंगे ना तब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करता, ठीक है? सर ये फेज शिफ्ट नहीं होंगी सर इसमें? इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होंगी? देख के देखो आप, नहीं होंगी फेज शिफ्ट इसमें, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है, इन फेज है, यहाँ पे आउट ऑफ फेज है, यहाँ निगेटिव को दिया है फीडबैक। उस समय हम जब ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो पॉजिटिव को देंगे, ठीक है ना? और ये यहाँ निगेटिव आने की वजह से कुछ प्रॉब्लम होते हैं। क्या प्रॉब्लम होते हैं? अब देखो, ये ए बीटा बहुत ज्यादा है, ये 1 माइनस, ठीक है ना? तो ये गेन बहुत बढ़ने की चांसेस रहते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक में वही तो होता है कि आपने थोड़ा सा भी रीजनरेटिव फीडबैक दिया तो वो बढ़ते सैचुरेट हो जाता है। ये अगर उसको सस्टेन्ड ऑसिलेशन दिए, उसको बनवाए, उसको सर्किट इस तरह बनाए कि अपन सस्टेन्ड ऑसिलेशन कर सके, तब हमको ऑसिलेशंस मिलते हैं। तो उसके बारे में मैं ज्यादा इलेबोरेट करूंगा जब मैं ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा, उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग वे से मैं बताऊंगा, ठीक है ना? अभी अपन निगेटिव फीडबैक पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ओके? ठीक है, चलेगा? आपको मैंने ब्लॉक डायग्राम से डिराइव करके इतने तरीके से ये बताया। ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये भूलना मत, ये आपको बहुत सारी चीज समझाता है ये इसमें। ये जो AF इक्वल टू VO बाई VN, इसको ओवरऑल गेन बोल सकते हैं आप, ओवरऑल गेन, या
क्लोज लूप गेन या गेन विथ फीडबैक, या एफ लिखा है ना, गेन विथ फीडबैक। ए यानी विदाउट फीडबैक। ए इज फिक्स, आपने बोला था इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, जो ऑप एम्प की प्रॉपर्टी है वो रहेगी 2 × 10⁻⁵, ये फिक्स्ड है। लेकिन बीटा मेरे हाथ में है ना कंट्रोल, बीटा आई कैन एडजस्ट, तो मेरे पास ओवरऑल गेन आई कैन चेंज। अब ये हम ऑप एम्प के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ ब्लॉक डायग्राम में बताया था, देन विल लर्न विद दी ऑप एम्प। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप कि जहां तक के मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आया है आपके। सर यस सर। देखो ये इसको इसी तरीके से जो डायग्राम होता है इसको कंट्रोल सिस्टम वाले कैसे लिखते हैं ये ब्लॉक को है, जबकि आपको ये करना नहीं है, लेकिन बता रहा हूं। इसको फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं क्योंकि इनपुट दिया है तो इधर आउटपुट मिल रहा है, ये फीडबैक पाथ है, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस अगर कौन सा रहेगा तो ये क्या बनेगा, इसलिए यहां गेन कैसा दिया है, यहां गेन दिया है ऐसे समझ लो, AF दिया है A/1 ± AB। तो प्लस कब आता है और माइनस कब आता है आपको मालूम है। प्लस कब आता है जब निगेटिव फीडबैक है, माइनस कब आता है जब पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक, हाँ ये याद रखना, उल्टा याद रखना, ठीक है, उल्टा याद रखना। पॉजिटिव फीडबैक के वक्त निगेटिव आएगा, निगेटिव फीडबैक के वक्त पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये एक ब्लॉक डायग्राम से पता है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो ब्लॉक डायग्राम बनाया ना वो याद रखना है इस तरीके से। ओके, अब मेरे ख्याल से समय हो गया, इसलिए मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट टाइम में हम यही चीज वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज करंट ऑप एम्प से करेंगे और एक्चुअल एप्लीकेशन देखेंगे आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बट विथ क्लोज्ड लूप। ओके।